बचपन तो फिर बचपन है, मासूमियत की प्रतिकृति, मासूम चेहरे, बेखबर सी आंखें, जुबां पर खामोशी की मोहर, पर मन में एक तूफान, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। पर ये क्या? पोलियो अर्थात पक्षाघात शरीर के स्नायु तंत्र की एक विकृति है जो शरीर के किसी अंग की सामान्य क्रिया को पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित कर देती है और अधिक या कम सीमा तक व्यक्ति को निक्षम बना देती है। जहां ये चिकित्सकों के लिए एक चुनौती का सबब बनती है, तो समाज के लिए एक चिंताजनक सरोकार का रूप ले लेती है। Polio is nothing but they affect the nerve cells, which supplies to the nerves, to the muscles, from brain to, if you want the contraction of the muscle, brain should order us. So then, if the connection is cut off in between the brain and the muscle, that nerve cell carries that stimulation. So they affect the anterior nerve horn cells. Those carry the stimuli, the vibrations, or the what you call from the brain and to the muscles. When you prick up, then suddenly man will hold it. So, but this will not happen because the paralysis of the muscles. This will not happen. This will supply the motor nerve, and supply will be lost in poliomyelitis. That is in the spinal cord. So from spinal cord to it will go to the brain. From brain to it will come to here. So sensory stimulation will go to from the here to the brain, but motor stimulation will stop at the spinal cord level. There the anterior poliomyelitis will affect the anterior horn cells. That will deprive the contraction of the muscles and this one. ये देखा गया है कि पाँव की मांसपेशियां अधिकतया प्रभावित होती है और हाथ की कम। पाँव या हाथ जो भी अंग प्रभावित हो वो थुलथुला हो जाता है और उसमें जान ही नहीं रहती। पर इनके मन में एक कसक, एक टीस, कुछ चीजें नहीं कर पाने की, इनकी ये व्यथा छुपाए नहीं छुपती। क्या इच्छा है? पढ़ना है? हाँ। कितना पढ़ना है? पूरी। कितना? पूरी। बहुत पढ़ना है? पढ़ के क्या करोगे? नौकरी करेंगे। बहुत सारे काम करने की इच्छाएं थी। आप बताओ क्या इच्छाएं थी काम करने की? खड़े होने की, चलने फिरने की और कुछ काम करें। और क्या काम करने की इच्छा? कोई भी, मतलब सबको देखते हैं तो हमारे भी मन में आता है ऐसे कि खड़े हुए हम भी। अब प्रश्न आता है निदान या उपचार का। इस संबंध में वस्तु स्थिति यही है कि इस रोग का अब तक कोई प्रभावी इलाज नहीं निकला है, अतः जो कुछ भी इलाज है वो केवल लाक्षणिक है। Our motto is immobile to mobile, mobile to independent. Our motto is a man who is not able to walk, we correct the deformities and make him to stand and make him to walk with appliances and make him independent. He immobile man may become mobile and independent. That is our motto. डॉक्टर आदि नारायण राव पोलियो ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान देश के विभिन्न भागों में हजारों ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। We balance the muscle power between the strong muscles and the paralytic muscles, so that we will get the results, good results. Then also we curve the bones in such a manner, we give mechanical advantage to the bones, so that without the muscle power they can walk. इनकी विशिष्टता पक्षाघात वाले हिस्से पर कम से कम समय में
मांसपेशियों के ऑपरेशन द्वारा पक्षाघात का निदान करना है। Special kinds of operation as has been described in foreign books, but we have derived the operations suits the Indian conditions. It is our operation is cheap, time is less. Within 1 or 2 minutes we perform the operation, and the cost factor is less, and you will get more economical our operations. And for our population, India's population is 60% of the world population, polio population is in India. So to meet all these things, we need the quick operation and cheap operation for our people, and at the same time quality to be maintained and to be rehabilitated as early as possible. पक्षाघात से प्रभावित मांसपेशियों को डॉक्टर, नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट तीनों की सेवाओं की आवश्यकता रहती है। ऑपरेशन के बाद कुछ हुआ, कुछ फर्क पड़ा? मतलब कैलिपर वो क्या एक्सरसाइज की नहीं ना पहले, इतने समझते नहीं थे तो एक्सरसाइज की नहीं तो उसकी वजह से ऐसे हो गया। अब सोचते हैं एक्सरसाइज करते तो खड़े हो जाते आज। ये धैर्य के परीक्षा की घड़ी है। यहाँ दवाई और ऑपरेशन को विराम मिलता है और व्यायाम की यात्रा शुरू हो जाती है। चाहते हो कि पैर अच्छा हो जाए तो दर्द तो सहना पड़ेगा। इन व्यायामों में जोड़ों को धीरे धीरे मोड़ना तथा सीधा करना और सभी जोड़ों को जहां तक वे सामान्य अवस्था में चले जाएं, वहां तक चलाना होता है। जोड़ों की सिकुड़न और विकृतियों को रोकने के लिए इन व्यायामों को जीवन भर जारी रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये उठ बैठ करेगी सहारे के साथ करो बेटा। दोनों पैर, हाँ इसमें दोनों पैर इसके इकट्ठे होने चाहिए, आगे पीछे नहीं। पूरा बैठो नीचे, पूरा नीचे बैठ जाओ। हाँ पूरा नीचे बैठो, 1-2 सेकंड तक बैठे रहो, 1-2 सेकंड तक बैठे रहो ताकि पैर जो है पूरा मुड़ जाए। ठीक है, सूजन नहीं रहेगी, सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, खून का दौरा पूरे पैर में बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे ये सहारा छोड़ेगी। ठीक है, एक पकड़ेगी और एक छोड़ देगी और फिर 20-25 दिन या लगभग 1 महीने के बाद ये बिल्कुल सहारा छोड़ देगी। ठीक है, 1 महीने तक इतनी प्रैक्टिस करना कि 1 महीने के बाद तुम बिना सहारे के कर सको उठ बैठ, किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, 1 महीने तक तो पकड़ना है। दूसरी कसरत ये है कि खड़े रहो बेटा। खड़े होके ये केवल एड़ी नीचे लगाएगी और पंजा ऊपर करेगी। ठीक है, पंजा ऊपर करेगी, 10 की गिनती करेगी, 1 2 3 ऊपर करके रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, उसके बाद इसको सहारा देंगे, कोई भी आप दे सकते हैं, और ये उस पैर पे खड़ी होगी जिस पैर का ऑपरेशन हुआ है। आ जाओ, हाँ छोड़ दो, हाँ चलो आओ। ठीक है, कोई भी एक आदमी इसको सहारा दे दे। आ जाओ, 1 2। अच्छा धीरे धीरे इसका भी ये बढ़ाना है समय, ज़्यादा देर तक खड़ी रहे अपने ऑपरेशन वाले पैर के ऊपर। ठीक है, अब तीसरी एक्सरसाइज है, इसको आगे लेके जाओ, पैर को, ऑपरेशन वाले पैर को आगे और पीछे, आगे पीछे और साइडवेज भी लेके जाना है। एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जिसे पोलियो या अन्य रोग के कारण पैरों की कमजोर हुई मांसपेशियों को सहारा देने के लिए अंगों के साथ बाहरी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कैलिपर पैरों को सामान्य स्थिति में रखता है। इससे जोड़ों का सिकुड़ना तथा बाद की गंभीर विकृतियों को रोका जा सकता है। ये खड़े होते या चलते समय कमजोर टांग से वजन को घटाकर कमजोर मांसपेशियों को सहारा देता है। कैलिपर कमजोर टांग का छोटा होना रोकता है क्योंकि मरीज का 60% वजन इसके द्वारा वहन किया जाता है।
रेखा अब चल सकती है औरों की तरह, काम कर सकती है औरों की तरह। बस यही जज्बा उसमें एक नई ऊर्जा भरता है, उत्साह और उमंग भरता है, उसके जीवन में रंग भरता है। मैं भी औरों की तरह चल पाती हूँ अब खड़ी होके, नहीं तो पहले मुझे घसीट के चलना पड़ता था। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और RS ऑफिसर की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ और मैं अफसर बनना चाहती हूँ कि औरों की तरह मैं पीछे नहीं रहूँ। ये युक्ति एक जीवन दान सा है जो उसे जीने का हौसला देता है, उसके अस्तित्व को अर्थवत्ता देता है, उसकी इच्छाओं और अरमानों के पंख लगा देता है। भारत ने भी प्रतिरक्षण की संकल्पना को अपनाया और देश भर में विगत वर्षों में प्रतिरक्षण का अभियान चलाया, जिसमें लाखों करोड़ों बच्चों को एंटी पोलियो दवा की खुराक पिलाई गई। इस रोग या विकार की चुनौती को स्वीकार करने में न केवल चिकित्सकों या परिवार की भूमिका रहती है, बल्कि समाज भी मूक दर्शक नहीं रह सकता।